آج کتنے لوگ خوش ہیں کہ خدا کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں. بھرپور تالیاں یسوع کے نام پر. آج اپنے کانوں کو اور دلوں کو کھولیے کہ وہ آپ سے بات کرنے والا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کلام شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں جو ہے نا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ سب نے انچی ٹیپ تو دیکھی ہوگی. انچی ٹیپ اور وہ کس استعمال میں آتی ہے؟ رانا صاحب کو تو زیادہ بہتر پتا ہے. وہ سلائی کا کام کرتے ہیں تو انچی ٹیپ استعمال ہوتا ہے میجرمنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو میجرمنٹس ہم کب لیتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے آپ؟ جب ہم کسی چیز کے لیے کسی چیز کو ناپنا ہو، کسی چیز کو ناپنا ہو، لوہے کو ناپنا ہو، لکڑی کو ناپنا ہو، اس کی کٹائی کے لیے. مگر ہم وہ انچی ٹیپ کو استعمال کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ ہم کسی چیز کو بنا سکیں یا کسی چیز کا میجرمنٹ لے سکیں. ایکوریسی کے لیے. یس، ایکوریسی کے لیے، کسی چیز کو نیا بنانے کے لیے، کسی چیز کو جو خراب ہے اس کو صحیح ترتیب دینے کے لیے ہم میجرمنٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی ایکوریسی جو نا ہم اس کو کر سکیں. ایسا ہی ہے. تو اسی چیز کو ہم سیکھیں گے آج کہ ایکوریسی اور انچی ٹیپ جب خدا آپ کی چیزوں کو ترتیب دیتا ہے تو وہ آپ کو ناپتا ہے. ایک ایک انچ وہ آپ کو ناپتا ہے، پھر وہ آپ کی بحالی کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو آج یہ چیز ہم کلام سے سیکھیں گے. آئیے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. زکریا کی کتاب نکالیے گا. زکریا 2 باب پہلی 2 آیت. کوئی بھی اونچی آواز میں. پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے. اور میں نے پوچھا تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا یروشلم کی پیمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے. ہاللیلویہ. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. یہاں پر زکریا رویا دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں جریب ہے. جریب کا مطلب انچی ٹیپ، اور جریب اس کو کہتے ہیں جس سے ہم جگہ کی پیمائش کرتے ہیں. وہ بڑے والا ہوتا ہے، گول، جس سے ہم جگہ کی پیمائش کرتے ہیں. تو پلاٹ کی کٹنگ یا پلاٹ کی کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں، اس کو ہم جریب سے کرتے ہیں. کیونکہ انچی ٹیپ کتنے قسم کے ہیں. درزی جو ہے نا کچھ اور قسم کی انچی ٹیپ یوز کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. تو جو زکریا دیکھ رہا ہے وہ جگہ کی پیمائش کی انچی ٹیپ کو، اس کے ہاتھ میں جریب کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ یروشلم کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے جا رہا ہے. ہاللیلویہ. تو اسی چیز کو ہم آج سیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بحالی کا. کہ جب ہم خدا بحال کرتا ہے، بحالی کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ اگر زکریا یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں انچی ٹیپ ہے اور وہ ناپنے جا رہا ہے یروشلم کو، تو اس کے پس منظر کیا چل رہا تھا. کیونکہ جب تک ہمیں پس منظر نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے تو ہمیں یہ اس آیت کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں. یہاں یروشلم جو بات ہو رہی ہے، یہ یروشلم تباہ ہو چکا ہے. یروشلم تباہ ہو چکا ہے. اور یہ بات کو جاننے کے لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شروع سے ہی یروشلم ایک مقدس شہر ہمارے لیے ہے اور خدا نے اس کو مخصوص کیا ہے. اور اس کی مشہور جو چیز ہے وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی، جو داؤد کا بیٹا تھا. تو اسی کو، اور اس کے پس منظر، اور یہ ہوا کب ہے جب یروشلم تباہ ہو چکا ہے. وہ ہوا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں میں گناہ آیا تھا. گناہ انہوں نے کر لیا تھا. وہ گناہ بت پرستی، دوسرے معبودوں کی پرستش، اور اپنے اندر گناہ کو لینا، دوسری قوموں میں شادی نہ کرنا،
दूसरी कौमों से बेटियां लेना, ये सारी चीजें उस वक्त की दौर की थी। और जब वो गुनाह यरूशलेम और उसके लोगों में आया, इस्राएल में आया, तो वो फिर तबाह हुआ। इसको पहले से इंडिकेट किया गया था यिर्मयाह की किताब में और हिजकिय्याह ने, ये यरूशलेम के लोगों को बताया गया था। और इसको आज हम सीखते हैं। यिर्मयाह निकालिएगा मेरे साथ, यिर्मयाह 25 बाब, उसका 8 से 11 आयत। यिर्मयाह प्लीज, 25 बाब। ये लोग यहां पर बाज नहीं आ रहे गुनाह से। और यिर्मयाह 25 बाब। जी 25 बाब 8 से 11 पढ़िएगा। ये गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं उन नबियों की बातों को। इसलिए रब्बुल फ़ाल यूं फरमाता है कि जी चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, जी देखो मैं तमाम शुमाली कायल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनेस्सर को बला भेजूंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क और इसके बशिंदों पर और उन सब कौमों पर जो आस पास हैं चढ़ा लाऊंगा और इनको बिल्कुल निस्तरबूद कर दूंगा और इनको हैरानी और सस्कारी का बायस बनाऊंगा और हमेशा के लिए वीरान कर दूंगा। बल्कि मैं इनमें से खुशी और शादमानी की आवाज दिलाने और दूल्हे और दुल्हन की आवाज, चक्की की आवाज और चिराग की रोशनी मौकूफ कर दूंगा। और ये सारी सरजमीन वीरान और हैरानी का बायस हो जाएगी और ये कौमें 70 बरस तक शाह बाबुल की गुलामी करेंगी। बेशक, आमीन आमीन। ये बाबुल का जो बादशाह है नबूकदनेस्सर, उसको खुदा ने इस्तेमाल किया है अपने लिए कि यरूशलेम को, क्योंकि जब गुनाह हद से ज्यादा हमें बढ़ जाता है या हम खुदा की मुखालफत में खड़े होते हैं, दूसरों को माबूद मानकर उनको सजदा करते हैं, तो खुदा कादिर खुदा है, वो गयूर खुदा है और वो फिर कहर भी देता है। तो यहां पर वो अपने लोगों को, हालांकि वही कौम जो खुदा की चुनी हुई है इस्राएल, उन्हीं को तबाह करने के लिए नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल कर रहा है। और हैकल को उन्होंने जला दिया है, शहर को तबाह कर दिया है, दीवारें गिर चुकी हैं, जहां पर खुशहाली थी तबाही आ चुकी है, सब कुछ तबाह हो चुका है। इवन वहां के जानवर वो भी मर चुके हैं, जानवर भी तबाह कर चुके हैं। उन्होंने बच्चों को मार दिया है, उन्होंने हर शय को खत्म कर दिया है। और जो बचे हैं, कईयों को वो कैद ही करके ले गए हैं और कईयों को वहीं पर उसकी फसलें उगाने के लिए रखा हुआ, वहां पर उनसे खेती बाड़ी का काम लिया जा रहा है, ताकि ये जो खेती बाड़ी करेंगे ये भी हम इनसे लेके जाएंगे। ये वहां पे तबाहकारी हो चुकी है। ठीक है, यही दौर था जो इस्राएल 70 बरस जला वतन रहा। 70 बरस उन्होंने जो ना बाबुल की कैद काटी है, नबूकदनेस्सर जो उनको लेके गया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेबीलोन असील भी कहते हैं, ये जब की बात है। और 70 साल कैद में रहने के बाद ज़िक्रिया नबी ये रोया देख रहा है। ये जो कलाम में आयत पढ़ी है हमने कि एक शख्स को देख रहा है कि वो इंची टेप लेके खड़ा है, तो ये 70 बरस की कहानी है। 70 बरस के बाद ज़िक्रिया नबी जो है ना, वो अपनी रोया में देख रहा है कि कोई शख्स है जो इंची टेप लेकर जा रहा है, और वो पूछता है कि तू कहां जाता है, तो वो कहता है मैं यरूशलेम की चौड़ाई और लंबाई को नापने जा रहा हूं। तो अब ये पसे मंजर आपको जानना जरूरी है कि ये कलाम की बात कहां पर हो रही है। तो ये बात सारी तबाही की है, तबाही हो चुकी है। फिर उसके बाद जो बहाली का आगाज है वो खुदा ने रोया दिखाई है अपने बंदा को। हालेलुया। और ये जो इंची टेप का मतलब वहां पर निकल रहा है कलाम पर, वो तामीर का है, तरक्की का है, बहाली का है, हिफाजत का है, मजबूती का है, मंसूबा बंदी का है। कभी भी कोई भी चीज तरतीब देनी हो तो मंसूबा बंदी जरूरी है। मंसूबा बंदी ये है कि मैं यहाँ पर घर बनाऊंगा तो ये मंसूबा बंदी है मेरी।
मैं उसको नापूंगा, मैं कोई चीज इस दीवार को गिराना चाहता हूँ या नहीं बनाना चाहता हूँ तो मैं उसको मेजर करूंगा कि इसको गिराया है तो अब बनाना है तो इसको मैंने मेजर करना है कि किस तरीके से इसको मैं तरतीब दे सकता हूँ। तो ये तरक्की का यहाँ पर पसे मंजर दिखा रहा है। रोया जो देखी है, खुदा ने जिक्रिया से फरमाया कि मैं यरूशलेम को दोबारा आबाद करूंगा। ये यरूशलेम को आबाद करने की बात हो रही है और खुदा जिक्रिया से कलाम कर रहा है। और वो जो शख्स है वो कोई शख्स नहीं बल्कि फरिश्ता जो जिक्रिया नबी अपनी रोया में देख रहा है, उसका मतलब ही मंसूबा बंदी। हालेलुया। खुदा फरमा रहा है कि यरूशलेम एक बार फिर खूबसूरत, वसी और बाबरकत होगा, क्योंकि जब खुदा बहाल करता है, वो खुदा जब आपको तरतीब देता है, खुदा बिगड़ी हुई को संवारता है, तो खुदा जब बिगड़ी हुई को संवारता है तो वो बेहतर से बेहतर और बरकतें अता फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो खुद फरमा रहा है कि मैं खुद इसके चारों गिर्द आग की दीवार बन जाऊंगा। खुदा ने ही तबाह किया है और खुदा ही उसको बहाल कर रहा है, क्योंकि वो अपने बंदों को छोड़ता नहीं है, वो अपने बंदों का साथ देता है, वो अपने बंदों को थाम के रखता है। वो जरूर आप पर जो न कह जाता है मगर वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो आज वो खुद फरमा रहा है कि मैं इसके चारों गिर्द दीवार बन जाऊंगा। ये यहोवा फरमा रहा है। हालेलुया। और इसके अंदर उसका जलाल होगा। हालेलुया। आज ये बात हमें सीखने की है। मतलब खुदा खुद उसका मुहाफिज है, दीवार बनकर खड़ा है, वो उसका चट्टान है, कोई उसको अबूर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसके अंदर जलाल और हुजूरी खुदा की होगी। हालेलुया। खुदा कुदूस। अब अगर बात करें इस रोया को, तो ये रोया ना सिर्फ उस जमाने की बल्कि आज हमें ये पैगाम दे रही है कि जब हम लोग गुनाह करते हैं तो गुनाह हमें तबाह कर देता है, हमारी सारी जिस्म की, मगर हम उसके चुने हुए लोग हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने क्या किया है। जब खुदा की हजूरी आपको छूती है तो आपको मालूम है कि आपने क्या गुनाह किया है और आप किस तकलीफ में हैं। कोई भी पर्सनल गुनाह होता है, कोई जाहिरी होता है, कोई बातनी होता है, कोई अंदरूनी होता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं कि हम गुनाह क्या कर रहे हैं, वो मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है कि मैंने क्या गुनाह किया है। तो वो जब गुनाह करते हैं तो हमारा अंदर जो है ना मैल भर गई है। तो मैल भर चुकी है, इसको खुदा बहाल कर सकता है। तो अपने आप को खुदा के हवाले करना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि तू इंची टेप लेके मुझको भी नाप, मेरी तरतीब कर। मैं बिगड़ चुका हूं, तू मेरे सर से लेके पांव तक का माप ले, मेरी चौड़ाई और लंबाई को साइज कर ताकि मैं बहाल हो जाऊं। हालेलुया। आपको आज इस बात को समझनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस्राएल कौम 70 बरस कैद के बाद जब आजाद हुई है, तो लोग जा रहे हैं अपने यरूशलेम की तरफ। तो इस चीज को समझने के लिए एजरा की किताब निकालिएगा। एजरा पहला बाब उसकी 7 से 11। यहां पर फारिस का बादशाह है एक, वो लोगों को जाने दे रहा है और जाने दे रहा है अपने लोगों में। तो किस तरीके से बहाली आ रही है, खुशहाली आ रही है और क्या क्या चीजें हैं जो खुदा हमें मुहैया कर रहा है। हालेलुया। देखिए, पढ़िए। और फारिस बादशाह ने भी खुदावन के घर के उन बर्तनों को निकलवाया, हालेलुया, जिनको नबूकदनजर यरूशलेम से ले आया था हालेलुया, और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। इन्हीं को शायद फारिस ने खजांची मित्रादात के हाथ से निकलवाया और उनको गिन कर यहूदा के अमीर शीश बजर को दिया। और उनकी गिनती ये है, सोने की 30 थालियां और चांदी की 1000 थालियां और 29 छिड़ियां और सोने के 30 प्याले और चांदी के दूसरी किस्म के 410 प्याले
और किस्म के बर्तन 1000, सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे। शीश बजर इन सबों को जब असीरी के लोग बाबुल से यरूशलेम को पहुंचाए गए ले आया। आमीन आमीन आमीन। इस आयत से आपको क्या मिलता है मैसेज? मैसेज ये है कि जब खुदा बहाल करता है तो वो आपकी एक एक चीज को बहाल करता है जो चली गई है, जो तबाह हो चुकी है। जो नबूकदनेस्सर उस वक्त एक एक चीज लेके गया है, वो खुदा ने उस फारिस बादशाह के उबूर किया है कि तू इनको वापस कर। एक एक चीज 5400 जो चीजें खुदा के घर से निकली थी 5400 वापस आई है। हालेलुया। जब खुदा आपको बहाल करेगा तो वो एक एक चीज को बहाल करेगा और बढ़ोतरियां तरक्कियां देगा। बस याद रखिए कि अपने आप को उसके हवाले करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर ये मैसेज सिर्फ उस वक्त के दौर का नहीं है। ये जो मैसेज है ये उस वक्त के दौर का नहीं है कि वो जो बहाली है वो सिर्फ यरूशलेम की हुई है, वो जो तबाही है वो जो यरूशलेम की हुई है। आज हम भी गुनाह करते हैं तो हमारी भी तबाही है। और बहाली कब है? जब हम उसके बेटे यीशु को अपना निजात दहिंदा और अपना खुदा मत जानेंगे। हालेलुया। अपने आप को उसके हवाले कीजिए, उसको नापने दीजिए, उसको कहिए कि मेरे दिल को नाप, मेरे सारे जिस्म को नाप, मेरे सारे ज़मीर को नाप। तू इसके बदले मुझे आराम दे, मुझे बहाली दे, मुझे तरक्कियां बढ़ोतियां और तू मुझे बहाल कर, बरकतों से बाबरकत कर। हालेलुया। यही उसका कलाम आज बयान कर रहा है। हालेलुया। बहाली का कलाम यही है कि आप अपने आप को उसके हुजूर में दीजिए, तब वो आपकी बिगड़ी हुई संवारेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक चीज का। यहाँ पर जैसे वो बर्तने, छुरियां, चाकू, हर चीज दे रहा है ना वापस, आपकी भी हर चीज वापस आएगी, 2 गुना 3 गुना वापस होगी, खूबसूरत बनाएगा। तामीर जब वो करेगा तो फिर इससे बदले में कुछ है ही नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आपकी बहाली हो।